breaking updates coming in. It's Times Now Modi 3.0 exclusive news break. Top BJP sources have told Times Now that the BJP will not bow down before the JDU. There is no space for needless demands. Coalition Dharma is going to be paramount, and the BJP will, of course, ensure that the allies and their concerns are taken care of, are being considered, but it's not going to bow down to every demand that comes in. My colleagues Mohit and Amit are joining us on the broadcast with the details. Mohit, there have been a lot of demands coming in. The BJP has, of course, been in discussions currently going on inside the residence of JP Nadda's house as well. But it's clear that the BJP has said that the allies, the demands that they make, they're going to, of course, ensure ally dharma, but it's not going to mean that any demand that comes in is going to be fulfilled. Well, yes, in fact, Pratibha, now we have been discussing since morning that there are certain ministries that BJP would not want to compromise upon. And as of now, BJP clearly have made it clear that they will not bow down in front of the unnecessary demands of the alliance partners. Yes, that coalition dharma has to be followed, coalition dharma will be followed, and every single alliance partner will be given due respect. They will work together, they will work together for 5 years. But then if any ally will try to pressurize the BJP that they want this, they want that, that is something which will not work. With time, specific ministries would be allocated to the alliance partners, and there are certain ministries that the BJP wants to keep with them, basically being MEA, basically being home, finance, defense, and also what we are getting to know is that law and railways, BJP also does not want to concede to the other parties. So other ministries, BJP is ready to give them their part, their share, and a formula has also been discussed on that. And right now we are reporting from JP Nadda's residence. An important meeting happened over here. Still, Amit Shah and JP Nadda and BL Santosh are there inside Nadda's residence, and the meeting is taking place. So all the permutations and combinations are being worked upon, but the BJP has clearly stated that coalition dharma will be followed, but unnecessary demand should not be made. Every alliance will be given what they will be treated with respect, and they will be given what they deserve. But BJP will surely not bow down in front of unnecessary demands. Back to you. Okay, all right. Stay with us, because remember, even as the NDA chalks out its plan for the government formation, Nitish Kumar-led JDU has also raised its voice against the Agnipath scheme, against the Agniveer scheme. The JDU has said that it wants that the shortcomings in the scheme are addressed. Listen in. अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। युवाओं को रोजगार, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और बिहार तो उसका मानक है कि बिहार जैसे राज्य ने महिला पुलिस बल में देश में सबसे ज्यादा। रोजगार के मामले में राष्ट्रीय विमर्श पर आप जब केंद्र ध्यान डालेंगे तो सबसे ज्यादा संगठित क्षेत्र में रोजगार हमने दिया। और जो लोग नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाते थे, जो दावा कर रहे थे 17 महीने का, उस दावे को जनता ने नकार दिया। अब पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय केसी त्यागी जी ने आधिकारिक रूप से यह मंतव्य दिया है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा हो। So, Amit ji, Amit, the discussions taking place, one is, of course, like we've been mentioning, and the inside scoop that you got us about what are the portfolios that each of these parties are seeking. But now we also understand that in the discussions, the JDU has also spoken about the shortcomings in the Agnipath scheme. देखिए, इसीलिए जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी आई है कि किसी भी तरह के अनवांटेड जो डिमांड्स होंगे उसको पूरा नहीं करेगी बीजेपी साथ चलेगी। और सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि चाहे 2014 की बात करिए या 2019 की बात कीजिए,
बीजेपी को अपने दम पर पूरा बहुमत आया था। इसके बावजूद बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को अपने साथ रखा था, उनको मंत्रालय दिया था और उनको ऐसा नहीं कि उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और सिर्फ अपने को लेकर आगे बढ़ी थी। तो जो कोलिशन धर्मा की बात बार बार होती है उसको बीजेपी पूरा निभा रही, पहले भी निभाई है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 और 2019 में बड़ी बहुमत के बावजूद सबको साथ लेकर चला था। लेकिन जब चाहे पॉलिसी मैटर्स हो या फिर अग्निवीर जैसे मैटर्स हो, अगर इस तरह के अननेसेसरी चीजों को लेकर अगर सवाल खड़े किए जाएंगे तो हर जगह पर बीजेपी झुक जाएगी या फिर उसको लेकर सवाल, जो सवाल खड़े करेंगे उसको मानेगी। ऐसे कतई नहीं होने जा रहा है। बीजेपी ने कहा है कि आप बात करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जो आपकी पोजीशनिंग होगी, आपके हिसाब से जो आपको सम्मान मिलना चाहिए वो पूरा सम्मान मिलेगा। लेकिन इस तरह की कोई भी डिमांड बीजेपी माने इसकी संभावना नहीं है। तो बड़ी क्लियरली खासकर अग्निवीर जो पूरा शुरू किया गया उसके पीछे एक मंतव्य है, एक सोच है जिसके बाद ये शुरू किया गया था। तो ऐसे में चाहे अग्निवीर हो या फिर कोई दूसरी जो चीजें हैं, तो साफ तौर पे एक आप कह सकते हैं कि मैसेज है बीजेपी की तरफ से कि ऐसे किसी भी अनावश्यक जो मांग है, डिमांड है, उसको लेकर अगर आपको लगता है कि आप दबाव बनाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी चलेगी, उनको साथ लेकर आगे बढ़ेगी, उनके सम्मान की भी ख्याल रखेगी और उन्हें जो मिलना चाहिए वो उसका भी ध्यान रखा जाएगा कि ताकि उनको ये ना लगे कि उनका जो हक है उसको मारा जा रहा है। तो इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से क्लियर है। तमाम सहयोगियों से लगातार बात हो रही है और आज करीब 6 घंटे से ज्यादा की लगभग मीटिंग चल रही है। अमित शाह नड्डा जी के यहाँ घर पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, लगभग सारे लोग जा चुके हैं, अभी भी बैठक चल रही है। इन्हीं सब सारी चीजों को लेकर चर्चा हो रही है कि आगे जब फॉर्म होगा गवर्नमेंट, कल एनडीए के सांसदों की बैठक है जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाना है। कल दोपहर को 11 बजे की ये बैठक है। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजों को लेकर बीजेपी भी तैयारी कर रही है और बीजेपी को लगता है कि ये कुछ कोशिश होंगी इस तरह की, लेकिन बहुत स्मूथली, बहुत एक इंटैक्ट के साथ, एक मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन आगे बढ़ेगा और 5 साल साथ रहकर हम लोग सरकार चलाएंगे। Okay, so the coalition dharma is going to be paramount for the BJP, and that's been in the discussion as well. Demands have come in from the allies, but you know this is going to continue, especially considering the numbers that are taking that the BJP has currently, and looking at the NDA allies as well. But we're also told that the smaller parties and independents have also joined, and this takes the numbers, Amit, for the NDA to 303. So the BJP and the NDA government is now currently comfortably placed. जी देखिए, अगर आप एनडीए की बात करें तो नंबर्स गेम में भले ही जो 272 का आंकड़ा है बीजेपी के पास ना हो, लेकिन जो गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन है वो बहुमत पे है, 292 है। इसके अलावा जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो करीब 6-7 इंडिपेंडेंट है और इसके अलावा कुछ छोटी पार्टियों को मिलाकर करीब ये जो आंकड़ा है वो 303 पहुंच गया है। तो एक कंफर्ट पोजीशन पे है। और सबसे बड़ी बात की एक जो लाइक माइंडेड जो पार्टी है, जैसे कि अगर आप बात कीजिए टीडीपी, बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है और टीडीपी भी इस बात को लेकर है कि वो पूरी तरह से समर्थन में खड़ी है नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में। नीतीश कुमार और उनके जो है उनको लेकर थोड़ी सी आशंकाएं होती है, लेकिन ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तब भी वहां पर कोई इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, ये संभव नहीं है। तो ये फिलर जो है वो जेडीयू की तरफ से भी आ रहा है कि गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग साथ हैं। और कल जब बैठक हुई थी तो आपने वो तस्वीर भी देखी कि कितने अच्छे से सभी लोगों ने मिलकर नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए उनको अपना नेता माना और पूरा समर्थन देने की बात की है। तो कोई दिक्कत नहीं है सरकार में, लेकिन निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक 272 के नीचे बीजेपी होगी। दबाव बनाने की राजनीति, क्योंकि राजनीति का जो पूरा खेल है वो नंबर गेम है, जिसके पास नंबर है वो सबसे आगे होता है। और इस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी उस नंबर में थोड़ी पीछे है। तो ये दबाव की राजनीति चलेगी, अपनी बातों को मनाने की कोशिश होगी, कुछ मिनिस्ट्रीज को लेकर दबाव बनाया जाएगा और ये मौका है, मुझे लगता है कुछ मिनिस्ट्रीज देने भी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि साथ लेकर चलना है, अगले 5 साल की बात है, तो वो भी बार्गेनिंग को स्वीकार करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज देने पड़ेंगे जो शायद वो ना चाहे कि दे, लेकिन फिर भी देना पड़ेगा आपको। Okay, all right. Amit and Mohit, request you to stay on with us because Times Network Group Editor-in-Chief Navika Kumar spoke to the LJP Chief Chirag Paswan over the JDU flagging concerns regarding the Agniveer scheme. Listen in to his response.
एक इस तरह की बात भी निकल कर आ रही है कि जेडीयू चाहता है कि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा दोबारा से हो और कुछ इसको लेकर वोटर्स में नाराजगी है। आपको इलेक्शन के दौरान ऐसा महसूस हुआ और आपको लगता है यह अग्निवीर स्कीम की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए? देखिए, मैं पहले बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं एक बात को मैं बहुत क्लियर कर दूं, जमीन पर, और ये मतलब बहुत बड़ी बात है नाविका जी, 10 साल से मैं भी चुनावी रण क्षेत्र में हूं, 2 बार का सांसद रह चुका हूं, तीसरी बार मुझे इस बार भारत की संसद में जाने का मौका मिलेगा। पहली बार मैंने ये अनुभव किया कि किसी एक नेता, किसी एक गठबंधन, किसी एक सरकार के प्रति जीरो एंटी इनकम्बेंसी, मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का तो भी नहीं था, बल्कि जो उत्साह था वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नाम पर था, किसी विपक्ष के नेता के नाम पर नहीं था। बट हाँ, उसके बावजूद हम लोग अपने लक्ष्य से थोड़ा सा चूके हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमियां रही हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोग चूके हैं। क्या वो कारण रहे, उसकी समीक्षा होनी जरूरी है, ताकि 2029 में हम लोग पुनः अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए हम लोग सरकार बनाए। ऐसे में क्या क्या कारण रहे, हर एक दल को अपना अपना जो अनुभव होगा, मुझे लगता है सरकार की गहमा गहमी एक बार समाप्त हो, एक बार शपथ ले ले सरकार, तैयार हो जाए, फिर एनडीए के तमाम साथी बैठेंगे और जो भी डैमेज है उसको रिपेयर कर 2029 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे।